So hi, so let's discuss questions. First question here is assertion reason question. Okay, what is given here? Both assertion and reason are true and A is the correct explanation of that. This is the first option. You have to read option also every time. Should read options. Second क्या है कि both correct है but that our reason is not a correct explanation of assertion. ये तीसरा है A is false, sorry A is true but R is false and the last one is D. अगर assertion false है तो आपको बाकी पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट आपने D मार्क करना है. So let's start the first question here. In mitosis, two identical cells are produced from a single cell, and karyokinesis is followed by cytokinesis. Okay. This is right. ठीक है ना? This is right. That means in mitokinesis, two identical equation. Mitokinesis is also called as equational division because the chromosome number remains constant. If 2n is equal to 4 in the parent cell, and then in the daughter cell also you will find 2n is equal to 4. That's why it is called as equational division. Question क्या है? In mitosis, two identical cells are produced from a single cell. Yes, of course. And karyokinesis is followed by nuclear division is followed by cytoplasmic division, right? Reason क्या है? Cytokinesis is of two types, by cell furrow method and cell plate method. This is also right sentence, but they are not related. See, these two are different sentence. There are the first explanation, first sentence is saying that the mitokinesis is also called as equational division, and what is second sentence is saying that is there are two different types of what cytokinesis. So these are two different sentence. So your option here should be B option आना चाहिए आपका. ठीक है बच्चे. नेक्स्ट क्वेश्चन है मियोटिक डिवीजन ऑकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल. एब्सोल्युटली राइट. रिवोल्यूशन ऐसे हुआ है कि पहले सोमैटिक सेल में माइटोटिक डिवीजन होता है, बट इवोल्यूशन ऐसे हुआ कि क्यों ना नेचर ने ऐसे सोचा कि क्यों ना कुछ अलग सेल बनाया जाए जहाँ पे गमेट्स फॉर्म होंगे और जहाँ पे सिर्फ मियोटिक डिवीजन होंगी, और उसी को अपन ने बोला है जर्म सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल. So the reproductive cells are diploid in nature, and in reproductive cell primarily meiosis takes place. So what is the motto of meiotic division? उद्देश्य क्या है उसका कि formation of gametes. Yes. Meiotic division occurs in reproductive cell. This is right sentence. Synapsis occurs during the zygote of meiosis. This is also right. Synapsis मतलब जोड़ा बनना है ना. meiosis 1 के prophase 1 की दूसरी स्टेज है ये. We know that the prophase of meiosis 1 have 5 different stages. ठीक है ना. लेप्टोटीन, जाइगोटीन है ना. लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन में बेसिकली जाइगोटीन का दूसरा नाम ही है साइनेप्टोनीन है ना. क्यों? क्योंकि वहां पे साइनेप्स बनता है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम का जोड़ा बन जाता है. वी हैव डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, बट सी बोथ सेंटेंस आर राइट बट दे आर नॉट रिलेटेड. बोथ आर डिफरेंट सेंटेंस. दैट्स व्हाई यू आर हियर आल्सो योर आंसर शुड बी आपका बी आना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. सेल नॉर्मली प्रोसीड्स टू मियोसिस विदाउट इंटरप्शन once it enter into G2 phase. This is wrong sentence. Cell normally do not enter into the meiotic division. There are some checkpoints will check करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं. ठीक है. G2 के बाद चेक पॉइंट रहता है G2 और ठीक है, तो वो क्या करता है, चेक करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन, टूटा फूटा डीएनए तो रेप्लिकेट नहीं हुआ है. तो ट्यूबुलिन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है. क्यों? एग्रोट्यूबुल्स बनाने के लिए, स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए. स्पिंडल फाइबर्स ही तो रहेंगे जो क्रोमोसोम्स का इक्वल बंटवारा करेंगे. तो ये सारे चेक किया जाता है. नॉर्मली आगे नहीं जाता, पहले चेक पॉइंट्स आर देयर. दिस इज रॉन्ग सेंटेंस. अगर असर्शन रॉन्ग आया है तो आपने डायरेक्ट डी देखना है ऑप्शन. व्हाट इज डी ऑप्शन? असर्शन इज रॉन्ग एंड that replicated chromosome DNA are distributed है ना. जो DNA which gets double in the S phase are equally distributed to the daughter nuclei by complex series of events. उसी को अपन बोलते हैं karyokinesis. ठीक है ना. सो आंसर यहाँ पे आना चाहिए बच्चे डी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है. meiosis occurs in apical meristem and lateral meristem. Yes, mitosis occurs in apical meristem and lateral meristem. lateral meristem और apical meristem क्या होता है? फॉर एग्जांपल
ये अगर प्लांट है तो ये रूट है। फॉर एग्जाम्पल द रूट विच इज प्रेजेंट अंडरग्राउंड, उसी को रूट बोलेंगे। तो यहाँ पे कुछ सेल्स होंगे, इसी को बोलेंगे रूट के अपेक्स पे जो सेम है रूट अपेकल सेल्स, उसी को बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स। रूट अपेकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और ये क्या करते हैं, दे प्राइमरीली शो माइटोटिक डिवीजन एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट। ये शूट अगर है तो शूट के यहाँ पे टिप पे कुछ सेल्स रहेंगे, उसके बोलेंगे शूट के अपेक्स पे है, इसलिए शूट अपेकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, एंड दे प्राइमरली आल्सो शो, दे डू नॉट शो मियोसिस। मियोसिस के लिए अलग जगह है जहाँ पे अपन रिप्रोडक्टिव सेल या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, फ्लावर, तो फ्लावर के अंदर वो होता है क्या, मियोसिस। कहीं पे भी नहीं होता, लीफ में नहीं होगा मियोसिस, है ना, फ्लावर में है। जैसे ह्यूमंस में सेक्स ऑर्गन्स में ही मियोसिस होगा, वहीं पे गमिट्स बनेंगे, हर जगह पे मियोसिस नहीं होती। नेचर में ऐसे इवोल्यूशन हुआ है कि मियोसिस की जगह कुछ अलग बनाई है ना। सोमैटिक सेल्स आर द डिफरेंट सेल्स which are present everywhere, and while the reproductive cells are different cells which are present only in the reproductive organ। ठीक है, तो रूट अपेकल मेरिस्टेम, रूट अपेकल मेरिस्टेम और सूट अपेकल मेरिस्टेम, यहाँ पे प्राइमरली होता है माइटोसिस, बराबर है, माइटोसिस ऑकर इन द अपेकल मेरिस्टेम एंड ऑल्सो, ये तो दो होगा अपेकल मेरिस्टेम। और अगर ये प्लांट है तो यहाँ पे लैटरली भी कुछ स्टेम्स रहते हैं, ठीक है, जो जिसको बोलते हैं लैटरल कैम्बियम और लैटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स। वो क्या करते हैं, प्लांट की चौड़ाई बढ़ाते हैं, चौड़ाई बढ़ाते हैं। ठीक है, रूट एंड शूट अपेकल मेरिस्टेम क्या करेगा, वर्टिकल ग्रोथ करेगा, हाइट बढ़ाएगा। ठीक है, और लैटरल मेरिस्टेम क्या करता है, चौड़ाई बढ़ाता है, चौड़ाई। ठीक है, थिक द विड्थ। ठीक है, सो दिस इज राइट। रीजन क्या दिया है, अपेकल एंड लैटरल मेरिस्टेम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, दिस इज ऑल्सो राइट। पर ये उल्टा लिखा है, बिकॉज ठीक है, सो यहाँ पे भी बी आएगा। माइटोसिस प्राइमरली, माइटोसिस होती है इसीलिए ग्रोथ होती है ना। वन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस इज व्हाट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन इन यूनिसेक्सुअल। सो दीज आर द है, बट दे आर, सी ये उल्टा लिखा है, अगर ऐसे रीजन असर्शन ये उल्टा लिखा है इसलिए अपन बी देंगे। ठीक है, ऐसे होना चाहिए कि अपेकल एंड लैटरल मेरिस्टेम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। वाई अपेकल एंड लैटरल मेरिस्टेम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, उसका रीजन ये है कि बिकॉज इन द अपेकल एंड लैटरल मेरिस्टेमेटिक सेल माइटोसिस ऑकर, दैट्स व्हाई दे आर रिस्पॉन्सिबल। ये असर्शन है और ये रीजन है, उल्टा लिखा है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन इन एनिमल सेल cytogenesis is achieved by appearance of furrow method in the plasma membrane, yes राइट है ना। एनिमल सेल में ये ऐसे होता है, डीपनिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है इसलिए वी कैन, है ना, ऐसे डीप एंड डाउन होती है और फिर ये बाद में चिपक की जाती है और देन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट सेल्स, है ना। यहाँ पे एक्टिन मायोसिन का रिंग बन जाता है और फिर ये जुड़ जाता है। दिस इज हाउ द मेथड इज कॉल्ड एज सेंट्रीपीटल और सेंट्री और दैट फरो, फरो बन गया ना ये, डीप एंड डाउन फरो मेथड achieved by appearance of furrow of plasma membrane, right? ठीक है, in plant cell the formation of new cell wall begins with the formation of simple precursor called as cell plate, this is also right. They have explained the two different method of cytokinesis in plant cell. Why in plant cell the cytokinesis is not occur by cell furrow method? Why? Because the plant cell have this thick cell wall is there, and because of the presence of rigid cell wall it is not possible to, the flexibility is not present in the rigid cell wall. because of the presence of cell wall बीच में ऐसा cell plate बनेगा और फिर cell plate ये ऐसे laterally, ये lateral wall को join हो जाएगा और फिर बनाएगा ये your middle lamella और the cell plate, इसी को बोलते हैं। ठीक है, सो बोथ सेंटेंस आर राइट बट दे आर नॉट, दे टू डिफरेंट सेंटेंस। ठीक है, दो डिफरेंट है, असर्शन रीजन नहीं है, मतलब नॉट रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, असर्शन। असर्शन है क्या है, माइटोसिस रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो।
यस, उसी के लिए तो पढ़ना ना, बढ़ बढ़ के पढ़ाया मैंने कि as soon as the size increases, this small nucleus is not capable, is inefficient to control the activity of this large size of cell. That's why the cell, the nucleus also get, that means the DNA also get doubles and the cell also get divide, है ना, न्यूक्लियस भी डबल होता है और फिर है ना रिस्टोर। सिग्निफिकेंस में पहली ही लाइन है, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस ये रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। डिस्टर्ब क्यों होता है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो? क्योंकि सेल की ग्रोथ होती है इसीलिए, तो उसको रिस्टोर कौन करता है? माइटोसिस। रीजन, इट इज सिग्निफिकेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। यस, माइटोसिस इज प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, especially in the growth of, yes, multicellular organism. Of course, the mitosis plays significant role in the growth of multicellular organism as well as development of multicellular organism, while it also play important role in the reproduction of unicellular organism. Yes, both are right, but they are not again related, not related. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन assertion दिया है, meiotic division occurs in the reproductive cell. Absolutely right. Meiotic division occurs in reproductive organ and inside reproductive organ, reproductive cells के अंदर होगा. The cell has to be diploid. ठीक है, as a result of meiosis the gametes are formed. Both are right and that is the correct explanation of that. ठीक है, because mitosis takes place inside the reproductive cell, that's why the gametes are formed inside the reproductive cell. Both are related. This is the correct explanation of that. Next question. Pollen mother cell produce 4 haploid pollen grains. Yes, from one PMC, pollen mother cell, the 4 pollen, 1 meiotic division, 1 meiosis, the 4 pollen grains are formed and which are all are haploid. Very right, very true. ठीक है, meiosis takes place in the, because meiosis takes place in the pollen mother cell, that's why the pollen grains are haploid and 4 pollen grains are formed. Because what is the product of meiosis? Always the meiosis results in the formation of 4 haploid pollen grain or gametes. Yes, that's why A is your answer. Because meiosis takes place inside the pollen mother cell, the pollen mother cell produce 4 haploid gametes because of the presence of, or because of the meiotic division. A. Understand? Next question. Small disc-shaped structure at the surface of centromere is called as kinetochore. Right. Suppose this is your that doubled chromosome where the DNA gets duplicate. Here one structure present, and here one structure present. ये जो स्ट्रक्चर है इसी को बोलते हैं काइनेटोकोर, एंड काइनेटोकोर को ही जाके स्पिंडल अटैच हो जाएंगे. अब दिस इज प्रोटीन इन नेचर. इसका जो केमिकली ये क्या है काइनेटोकोर? काइनेटोकोर इज प्रोटीन इन नेचर. वेरी राइट. और प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, बोथ सेंटेंस आर राइट बट दे आर नॉट रिलेटेड. बिकॉज प्रोटीन इन नेचर, इसीलिए ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, both sentences are right but that is not, reason is not a correct explanation of assertion. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th number. The number of chromosomes remain constant in mitosis. Yes, of course. Why number of chromosomes remains equal in the mitosis? DNA तो डबल होता है ना इस फेज में, still the number of chromosomes remains constant. Why? Because the centromere, for example, this is your doubled chromosome, the centromere gets splits. That's why in mitosis the number of chromosomes remains constant. That's why we call mitosis as the equational division. Yes, this is right. In anaphase, separation of sister chromatids occur. Why sister chromatids get separate? Because of the splitting of centromere. That's why. A, because the centromere gets split, or because the sister chromatid gets separate. That's why the number of the chromosomes remains constant in mitosis. A is your answer. This is the correct explanation. Reason is the correct explanation of assertion. Next question. Sister chromatids which are separated in anaphase 1.
अच्छा, sister chromatids which are separated in the anaphase 1 are genetically non-identical. Yes, right. Because why sister chromatids which are separated in the anaphase 1? For example, this is your dyad. This is the product of meiosis 1. In the meiosis 1, you will form two haploid cells. Yes, two haploid cells. In the two haploid cells, suppose this is one chromosome. ठीक है, and this is your another chromosome. The homologous chromosomes get separate. ठीक है, now here कुछ तो मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है, द मटेरियल गेट एक्सचेंज, दैट्स व्हाई दीज टू सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी क्या रहे, सिस्टर प्रीवियसली सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते थे, ये क्या है, जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल है. जेनेटिकली यहाँ पे सपोज कैपिटल टी है तो यहाँ पे स्मॉल टी हो सकता है, यहाँ पे कैपिटल टी है तो यहाँ पे स्मॉल टी होगा. दैट्स व्हाई दे बोथ आर जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल. और ये क्यों हुआ है ऐसे, वाई दे आर जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल? रीजन इज यू आर क्रॉसिंग ओवर एट द पैचेटिन स्टेज, क्योंकि पैचेटिन में क्रॉसिंग ओवर हुआ है. दैट्स व्हाई द सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर नॉन आइडेंटिकल. सिस्टर क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड टू कॉमन सेंट्रोमियर. दिस इज राइट सेंटेंस, बट क्योंकि वो कॉमन सेंट्रोमियर को अटैच है इसीलिए उसको नॉन आइडेंटिकल नहीं बोलेंगे. नॉन आइडेंटिकल क्यों बोलेंगे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ है कहाँ पे, पैचेटिन स्टेज में. प्रोफेज के पैचेटिन प्रोफेज 1 के पैकेटिन स्टेज में क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है, इसीलिए दे आर नॉन आइडेंटिकल. ठीक है, यहाँ पे जो सेंटेंस है सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच टू कॉमन सेंट्रोमियर, बराबर है ना. सपोज ये कॉमन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये सेंट्रोमियर इसका कॉमन रहता है. दिस सेंटेंस इज राइट, बट दिस टू बोथ आर डिफरेंट सेंटेंस. सिस्टर क्रोमैटिड्स को सिस्टर क्रोमैटिड्स इसीलिए बोलेंगे क्योंकि उनका सेंट्रोमियर कॉमन है. अगर सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया और फिर डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रोमियर मिल गया उनको, तो उनका नाम अलग दिया जाता है, उनको क्रोमोसोम्स घोषित कर दिया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एनाफेज 2, अच्छा एनाफेज 2, ये रॉन्ग है. This is wrong. Sorry, I am extremely sorry. Sister chromatids which get separate in the anaphase 1 में, तो पहली बात sister chromatids separate नहीं होते, anaphase 2 में separate होते हैं. anaphase 1 में bivalent, anaphase 1 में क्या होता है, anaphase 1 में, ठीक है, ये जोड़ा सेपरेट होता है. the bivalent get separate, the bivalent get separate, not a sister chromatid. This is wrong. So your answer क्या आएगा, D आएगा, D. In anaphase 2, sister chromatids which get separated are non-identical. This is right. This is right. क्यों sister chromatids जो anaphase 2 में sister chromatids separate होते हैं, anaphase 1 में bivalent का जोड़ा जो है उसमें से homologous chromosomes का जोड़ा सेपरेट हो जाता है anaphase 1 में. ठीक है, ये गलत हो गया. In anaphase 2, sister chromatids which get separated are non-identical. Yes, absolutely true, because क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स इन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ है पैचेटिन स्टेज में इसीलिए. ठीक है ना, ये आर राइट एंड दिस इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एनाफेज 2, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर. रॉन्ग. एनाफेज में बायवैलेंट, एनाफेज 2 में क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं which are genetically non identical. जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना. ये डायड है, फॉर एग्जांपल ये डायड था, ये डायड क्या करेगा, मियोसिस 2 में एंटर करेगा. मियोसिस 2 में जाके ये जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम जो है
ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम जो था विच इज नॉन आइडेंटिकल, इसको नॉन आइडेंटिकल बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चा, ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना, स्प्लिट होता है एनाफेज 2 में, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है। जो मेटाफेज में ये जाके अलाइन होते हैं इक्वेटर पे, मेटाफेज में दे गेट अलाइन एट द इक्वेटर नॉट एट द एनाफेज, ये रॉन्ग हो गया। एनाफेज 2 में नहीं, मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर, यहाँ पे मेटाफेज चाहिए। इसका रीजन क्या है, पहले तो ये डी ही आना चाहिए डायरेक्ट क्योंकि असर्शन ही रॉन्ग हो गया। फिर भी रीजन, सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, ये बराबर है, दिस इज राइट। सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है एनाफेज 2 में एंड द सिस्टर क्रोमैटिड्स व्हिच आर जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल आर सेपरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल आफ्टर टेलोफेज 2 डज नॉट एंटर अनदर इंटरफेज। टेलोफेज 2 के बाद साइटोकाइनेसिस होने के बाद अपने को 4 हैप्लॉइड गमीट्स मिलते हैं, रिजल्ट, ठीक है। गमीट्स आर स्पोर्स आर हैप्लॉइड आर फॉर्म्ड आफ्टर टेलोफेज, यस दिस इज राइट, बिकॉज द गमीट्स आर हैप्लॉइड एंड गमीट्स आर फॉर्म्ड आफ्टर टेलोफेज 2, द गमीट्स डू नॉट डिवाइड फर्दर, do not have independent life, that's why they do not again enter into another interphase, that's why this is the correct explanation. Gametes are haploid in nature, they do not divide further except in some condition, but ठीक है ना, some exceptions are also there. Assertion, डिप्लोटीन is the final stage of prophase, no, डाइकाइनेसिस ये final stage है ना, डाइकाइनेसिस is the final stage, डिप्लोटीन नहीं, तो इसका डायरेक्ट डी ही आएगा। असर्शन, रीजन, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा ऑकर्स इन डाइकाइनेसिस, ये बराबर है, पर ये पढ़ना भी नहीं था क्योंकि डायरेक्ट अपना असर्शन ही रॉन्ग है। सम सेल्स अंडरगो G0 फेज ड्यू टू एग्जिट आउट ऑफ सेल साइकिल, बराबर है। अगर सेल साइकिल से एग्जिट कर गया, सपोज ये है ये G1 है आपका, S है, ये G2 है ना, और ये छोटा सा हो गया आपका M फेज, तो G1 के एंड में डिसाइड किया जाता है सम सेल्स एग्जिट एंड एंटर इनटू G0, ठीक है। सम सेल एग्जिट कर गए, एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर इनटू द G0 फेज, राइट, ठीक है। सेल्स एट दिस स्टेज रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे बट नो लॉन्गर डिवाइड और नो लॉन्गर proliferate. Both sentences are right but not correct explanation. Both two are different sentence. ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते क्या है। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल साइकिल। एम फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्टिंग फेज, रॉन्ग है ये, रेस्टिंग फेज नहीं, रेस्टिंग फेज तो इंटरफेज को बोलते हैं। हाँ, इंटरफेज इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर डिविजन, दिस इज राइट सेंटेंस, है ना। प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं इसलिए इसको। द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोमिनेंट फेज, G0 नहीं, ये नहीं है, G1 यस, इसलिए ये रॉन्ग आ गया, ठीक है। द इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव M फेज, यस ऑफ कोर्स, इंटरफेज M फेज, interphase M phase, interphase M phase, in between these 2 successive M phase interphase is there, or in between 2 successive interphase M phase is there, yes, right sentence, this is right है, 2 and 4 right आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, during G2 phase diploid cell contain amount of DNA equal to diploid cell, है ना। जैसे पेरेंट सेल में अगर 2n इज इक्वल टू है आपका 16, तो G1 में क्रोमोसोम नंबर 16 ही रहता है, S फेज में भी 16 ही रहता है, G2 फेज में भी 16 ही रहता है। आपको क्रोमोसोम ऐसा दिखेगा, यहाँ पे G1 में भी ऐसा ही दिखेगा। S फेज में DNA गेट्स डबल, तो आपको ऐसा क्रोमोसोम दिखेगा। G2 में भी सेम टू सेम रहेगा। मतलब DNA कंटेंट अगर आपका यहाँ पे है 2C, तो यहाँ पे भी 2C रहेगा, पर यहाँ पे 4C और 4C मिलेगा, 4C और 4C। दैट मीन्स इफ यू सी द अमाउंट ऑफ DNA इज इक्वल टू टेट्राप्लॉइड सेल, टेट्राप्लॉइड में जितना रहता है उतना ही मिलेगा आपको। टेट्राप्लॉइड में कितना रहता है, डबल रहता है ना, 2n के डबल रहता है, 2n इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2C है, तो टेट्राप्लॉइड में कितना रहेगा, 4n इज इक्वल टू 4C रहेगा टेट्राप्लॉइड कंडीशन में, तो 4C मिल रहा है ना आपको टेट्राप्लॉइड सेल। G2 की बात कर रहे हैं इसलिए।
इन विच ऑर्डर द साइटोकाइनेसिस ऑकर्स इन प्लांट, प्लांट में क्या होता है, प्लांट में फॉर एग्जाम्पल ये सेल है तो बीच में सेल प्लेट बनता है, सेल प्लेट, फिर सेल प्लेट से ही ये सेल प्लेट लैटरल वॉल को ज्वाइन हो जाएगा, ये सेल वॉल है, और फिर जाके ये मिडल लैमेला बनेगा। दिस इज हाउ द टू सेल डिवाइड और दिस इज हाउ द साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस इन अ सेंट्रीफ्यूगल मेथड। ठीक है, सेंट्रीपिटल एनिमल सेल में होता है, प्लांट में। न्यूक्लियर एनवलप रीअपियर एट विच फेज, एट प्रोफेज, सॉरी एट न्यूक्लियर रीअपियर बोला है, डिसअपियर प्रोफेज में होता है, रीअपियर आता है टीलोफेज में, रीअपियर पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डज नॉट ऑकर्स इन प्रोफेज। प्रोफेज में तीन चीजें होती है, द सेंट्रियोल विच गेट्स डुप्लीकेट इन द एस फेज इन द एनिमल सेल, move towards the opposite pole or started moving towards the opposite pole, then the chromatin started condensation into the chromosome, ठीक है, और द स्पिंडल फाइबर की असेंबली बनना स्टार्ट होते हैं। ये तीन चीजें होती है कहाँ पे, प्रोफेज में। डीकंडेंसेशन नहीं होता क्रोमेटिन का, ये जो धागा है क्रोमेटिन का ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाता है क्रोमोसोम, ठीक है ना, ऐसे दिखेंगे आपको प्रोफेज में, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर दिखेगा। कंडेंसेशन होता है, अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम विल बी देयर क्योंकि क्रोमेटिन का क्रोमोसोम बन गया, और डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गोल्गी एट द एंड और लेट प्रोफेज में क्या होता है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस गोल्गी ईआर डिसअपियर होते हैं। तो आंसर आएगा यहाँ पे 1 क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा था इसीलिए। In which stage of cell division the number of chromosomes can be best counted? In metaphase, because in metaphase the morphology of chromosome, क्योंकि मोटे तगड़े the condensation of chromatin into chromosome completes in the metaphase, metaphase में जाके मोटे तगड़े पूरे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं क्रोमेटिन से, और द क्रोमोसोम्स आर लाई एट द इक्वेटोरियल प्लेट, बीच में सारे के सारे अरेंज हो जाते हैं सेल के बीच में। सो यू कैन इजीली काउंट द नंबर एंड मॉर्फोलॉजी एट द मेटाफेज। शेप अगर मुझे स्टडी करना है तो टीलोफेज, सॉरी शेप अगर मुझे स्टडी करना है तो एनाफेज देखना पड़ेगा। ठीक है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स शैल बी प्रेजेंट इन अ डिप्लॉयड सेल एट अ माइटोटिक एनाफेज, माइटोटिक एनाफेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ढूंढने हैं। इफ ओवम ऑफ अ सेम स्पीशीज हैड 10 क्रोमोसोम, ओवम में दिया है कितने हैं 10, तो ओवम रहता है हैप्लॉइड, तो पेरेंट में कितने रहेंगे 20 क्रोमोसोम्स, पेरेंट में कितने रहेंगे 20, पेरेंट में रहेंगे 20 क्रोमोसोम्स। ठीक है, 20 क्रोमोसोम्स। अगर ये पेरेंट एंटर कर गया G1 S G2, क्या पूछा क्या है, हाउ मेनी क्रोमोसोम शैल बी प्रेजेंट G2, उसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अच्छा ठीक है, पेरेंट में क्रोमोसोम 20 है, यहाँ पे भी क्रोमोसोम 20 है, यहाँ पे क्रोमोसोम 20 है, क्रोमोसोम का नंबर कोई चेंज नहीं होता। प्रोफेज में क्रोमोसोम नंबर 20 है, पर यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है, पूरे यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है, यहाँ पे एस फेज से स्टार्ट हो गई, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, 1 क्रोमोसोम विथ 1 क्रोमैटिड। नाउ फ्रॉम द एस फेज यू विल सी द 1 क्रोमोसोम विथ 2 chromatids. Proceeds here same, you will see the picture similar here in the M phase also. ठीक है, what happens in the anaphase, anaphase में बीच में से टूट गया, the centromere gets splits and the 2 sister chromatids now have their individual what centromere. That's why this is now 1 chromosome and this is your another chromosome. ठीक है, अगर यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर 20 है तो एनाफेज में जाके ये 40 हो जाएगा। 40 क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, एक क्रोमोसोम से एक सिस्टर क्रोमैटिड्स नाउ इंडिविजुअल क्रोमोसोम। In which stage of mitosis the chromosomes are composed of 2 chromatids? दिख रहा है ना यहाँ पे, प्रोफेज और मेटाफेज में 1 क्रोमोसोम is having 2 chromatids, 1 and 2, 1 and 2,
एनाफेज में ये सिचुएशन दिखेगी आपको, बीच में से टूट जाएगा, वन क्रोमोसोम विल हैव वन क्रोमेटिड नाउ, यहाँ पे भी पूरे वन क्रोमोसोम वन क्रोमेटिड, यहाँ पे वन क्रोमोसोम टू क्रोमेटिड। ऑप्शन देखते हैं, मेटाफेज और प्रोफेज में जाके आपको ये दिखेंगे। एनाफेज और टीलोफेज में तो क्रोमोसोम दिखते ही नहीं है, दे लूज देयर आइडेंटिटी। एनाफेज में वन क्रोमोसोम विल हैव वन क्रोमेटिड। गैप बिटवीन डिवीजन फेज एंड स्टार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड एज। अच्छा, ये ना क्या पूछा इन्होंने, ये एम फेज है आपका, एम फेज, ठीक है, और ये एस फेज हो गया, तो इसके बीच में के गैप को बोलते हैं यूर जीवन फेज, ग्रोथ फेज, गैप फेज, प्री सिंथेटिक, पोस्ट माइटोटिक, ऑल दीज आर नेम, है ना। ड्यूरिंग विच डिवीजन स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू, ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू विच पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। हाँ, ये सपोज क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम में एक स्ट्रक्चर मिलता है अपने को, दिस काइनेटोकोर, और ये काइनेटोकोर को ही क्या होते हैं, स्पिंडल्स अटैच होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, काइनेटोकोर नहीं दिया है तो आपका आना चाहिए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ड्यूरिंग विच स्टेज अ डिप्लॉयड सेल बिकम टेट्राप्लॉयड इन माइटोसिस। माइटोसिस में जाके ऐसी एक ही स्टेज है जहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल में 2n इज इक्वल टू 16 है, ठीक है, या फिर 2n इज इक्वल टू सिंपल छोटा नंबर ले लेते, 2n इज इक्वल टू 4 है, तो जीवन में, एस में, G2 में 4 ही रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इवन प्रोफेज में भी कांस्टेंट ही रहेगा, 4 ही रहेगा। मेटाफेज में ही भी 4 ही रहेगा। एनाफेज में जाके, फॉर एग्जाम्पल ये एक क्रोमोसोम है, तो ये एनाफेज में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे 1 2 3 और ये 4 है, ठीक है, तो ये बीच में से टूट गया, 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 ठीक है। तो अपने को ये एक क्रोमोसोम है, अभी ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, चौथा, 8 total number of chromosomes are 1 2 3 4 5 6 7 8 chromosomes are there. The only phase is your, ठीक है, टेट्राप्लॉइड हो गया, एनाफेज। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर ऑकर्स, सेंट्रोमियर डिवाइड इन एनाफेज। कोई डिफिकल्टी नहीं है, कितनी बार एक ही चीज भर भर के पढ़ा है क्लास में, लेक्चर्स देख लेना अच्छे से। कि what happens in the synthesis phase during cell cycle, डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन G2 में होता है, फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। Reappearance of nucleolus along with the thinning and elongation of chromosome are a diagnostic feature of nucleolus reappearance, nuclear membrane reappearance, and the chromosomes lose their identity and now become again chromatin. This is a feature of telophase. Condensation of chromosomes and appearance of astral rays. Chromosome starts condensation. The chromatin now converted into proper structured chromosome. ठीक है, and for example, this is a cell inside a nucleus. You will see a picture. The chromatin now start condensation to form a chromosome structure like chromosome. These centromeres move to the opposite pole, okay, and these astral rays are formed, and the nuclear membrane disappear. Okay, even this is your early prophase. The nucleolus started disappearing. This is your early prophase. ठीक है, एस्ट्रल रेज कब बनेंगे, प्रोफेज में बनेंगे। दीज आर योर एस्ट्रल रेज। एस्ट्रल का क्या होता है, द सेंट्रोसोम along with the microtubules and the spindle fibers, उसी को बोलेंगे एस्टर। क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर इज बेस्ट स्टडीड ऑब्जर्व्ड। अगर मुझे मॉर्फोलॉजी देखनी है तो मुझे मेटाफेज में देखनी पड़ेगी। M phase of the cell cycle consists of M phase, prophase, metaphase, anaphase, telophase. इतने को इजी क्वेश्चन, ठीक है। The cell is diploid. If the cell is diploid in the G1,
if the cell is diploid in the G1, then after S phase the cell remain diploid ही रहेगा. Chromosome number remains constant throughout the metaphase except at the N. क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द माइटोसिस. यहाँ पे माइटोसिस में वैसे स्पेसिफाई नहीं किया है, पर क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहता है जब तक सेंट्रोमियर स्प्लिट ना हो जाए. ठीक है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर प्रॉपर इन लेट प्रोफेज. अर्ली प्रोफेज में स्टार्ट होता है डिसअपियर होना और पूरी तरीके से गायब हो जाती है लेट प्रोफेज में. प्री डीएनए सिंथेटिक फेज इज कॉल्ड एज. डीएनए सिंथेसिस के पहले की फेज कौन सी रहती है? डीएनए सिंथेसिस, सपोज दिस इज योर डीएनए सिंथेसिस, उसके पहले आता है योर जी1 फेज. प्री डीएनए जी1 फेज. हाउ मेनी स्टेप्स डिवीजन will occur in an isolated tip cell to form 128 सेल. सेम क्वेश्चन किया था अपन ने. अगर मुझे माइटोटिक डिविजन्स जाननी है, 128 सेल्स बनने के लिए कितनी माइटोटिक डिवीजन चाहिए? माइटोटिक डिवीजन फिर न्यूमेरिकल्स में पढ़ता आता है. वन फॉर्मूला इज देयर फॉर 3 सेल्स, for 4 cells how many mitotic divisions are required? 3 mitotic divisions, है ना, mitotic divisions. That's why for 128 cell how many mitotic divisions will require? 127. There is one formula n-1. n मतलब फाइनल कितने माइटोटिक सेल मिल रहे, सॉरी फाइनल कितने सेल है, फाइनल आउटकम ऑफ माइटोसिस, आउटकम ऑफ माइटोसिस और माइटोटिक प्रोडक्ट. फाइनल आउटकम कितना है? 128 सेल. तो 128 -1 कितना हो गया? 127 माइटोटिक डिविजन्स. जनरेशन कितनी रहेंगी इसके लिए? 7 जनरेशन लगती है शायद, एक बार देख लेते हैं. 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128. 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जनरेशंस. हाँ. The number of chromatids in the chromosome at G2 stage of a cell cycle will be. ठीक है. पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स ऐसा रहेगा, G1 फेज में भी सेम रहेगा. S2 फेज में नंबर ऑफ 1 क्रोमोसोम विल हैव 2 क्रोमैटिड्स. G2 में भी 1 क्रोमोसोम विल हैव 2 क्रोमैटिड्स बिकॉज द डीएनए गेट्स डबल इन द S फेज. 2 रहेगा इसमें. द नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, ये हो गया एक क्रोमैटिड, ये हो गया 1 क्रोमैटिड. क्रोमैटिड मतलब क्रोमोसोम जो डबल हो गया उसी को क्रोमैटिड बोलेगा. क्रोमैटिड. एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स, वही है ना. आगे क्या बोल रहे हैं? मेनी सेल फंक्शन प्रॉपरली एंड डिवाइड माइटोटिकली इवन दो दे डू नॉट हैव. प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए, साइटोप्लाज्म चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, प्लास्टिड की जरूरत नहीं रहती. 4 माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है, साइटोस्केलेटन चाहिए, वही तो न्यूक्लियर मतलब क्रोमोसोम्स का बंटवारा करता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं रहेगी तो सेल ही नहीं भाई, डिवीजन क्या दिखाएगा? सेंट्रोमियर इज क्यों चाहिए? सेंट्रोमियर मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम टुवर्ड्स पोल, क्योंकि सेंट्रोमियर को ही पकड़ के खींचता है, सेंट्रोमियर को ही पकड़ता है ये कौन? स्पिंडल फाइबर, और उसी को खींचता है. दैट्स व्हाई द सेंट्रोमियर को पकड़ के ही खींचता है. दैट्स व्हाई दे आर रिक्वायर्ड सेंट्रोमियर टुवर्ड्स पोल. 1. At which stage of the cell cycle are histone proteins synthesized in eukaryotic cell? See, S phase. The tubulin proteins are synthesized during G2 phase. Histone proteins, DNA duplication and the centriole duplication inside the animal cell, inside the cytoplasm takes place in your S phase. ठीक है बच्चा, क्या बोल रहा है यार ये? प्रोफेज, which of the following prophase which follows S and G2 phase of interphase is the first stage of कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट स्टेज प्रोफेज है.
है ना. Which are the four stages of karyokinesis? Prophase, metaphase, anaphase and telophase. The two aster together with the spindle fiber form perpendicular centrosome with asters along with the spindle fibers. They are called as a mitotic apparatus or spindle apparatus. One aster, two aster with the spindle fibers. In prophase centrosome which has undergone duplication during interphase begins to move towards opposite pole of the cell, not same. This is one pole and this is another pole. ये prophase का picture है. Which of the following not occur in anaphase 1 but occur in anaphase 2? एनाफेज 1 में ये जो बायवलेंट का जोड़ा है ये डिसजंक्शन सेपरेट हो जाता है, एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है. एनाफेज 2 में क्या होता है, एक सेल में ये जो गया है बायवलेंट का एक वन होमोलॉगस क्रोमोसोम का इसका जो ये है सिस्टर क्रोमैटिड्स genetically non-identical sister chromatids get separate in the anaphase 2. Why the sister chromatids of homologous chromosome सेपरेट क्यों होते हैं एनाफेज 2 में? क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है इसलिए. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2? एनाफेज 1 में बायवलेंट का जोड़ा सेपरेट हो जाता है और एनाफेज 2 में द सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है. स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर. पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम कब होगा? पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम एनाफेज 1 में होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ऑकर इन एनाफेज 1? एनाफेज 1 में पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम होता है, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल भी होते हैं, सिर्फ स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एनाफेज 2 में होती है. क्रॉसिंग ओवर कब होगा भाई? पैक्टिन में होगा ना. रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दैट एंजाइम इन्वॉल्व होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा? recombinase. Two events maintain the constant number of chromosomes across the generation. Meiosis ensure the haploid stage in a diploid organism, and this haploid stage is again restored into diploid stage by fertilization. है ना बच्चे? मैच द फॉलोइंग मैच करने का है. पैचिटीन में क्या होता है? जीन एक्सचेंज. ए का 4 कितना जगह दिया है? अरे ए का 4 एक ही जगह दिया है तो ये डायरेक्ट ही आ जाएगा. यही आ गया क्योंकि ऑप्शन देखो ए में ही से. ए का 4. बी क्या है? जाइगोटीन साइनेप्सिस होते हैं उसमें बराबर है. डिप्लोटीन में क्या होता है? काइजमेटा विजिबल होता है डिप्लोटीन में. एब्सोल्युटली राइट. लेप्टोटीन में बुकेट स्टेज दिखता है. डाइकाइनेसिस में क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन. सो दिस इज योर आंसर. वैसे एक से ही आंसर आ गया तो देखना भी. Which of the following part of a plant is suitable for the study of meiosis? अगर मुझे meiosis देखना है तो मुझे anther देखना पड़ेगा. You will study meiosis only in a reproductive organ. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? फ्लावर. फ्लावर के अंदर जो एंथर है ना वो एंथर में अपन क्या करते हैं? उसकी स्टडी करते हैं मियोसिस के. यहाँ पे ओवरी नहीं, रूट अपेक्स वो सब नहीं. ठीक है. स्लीपिंग ऑफ काइस्मेटा टुवर्ड्स द एंड ऑफ बायवलेंट इज कॉल्ड एज. स्लीपिंग मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल ये जो जोड़ा था अपना होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का, ठीक है, यहाँ पे जेनेटिक एक्सचेंज हुआ तो ये जो है ऐसे धीरे धीरे खुलता है ना. फॉर एग्जाम्पल अभी ये क्या हो गया? आगे जाके ऐसे अटैच तो हो रहा है ऐसे जिसमें ये खुल गया. स्लीपिंग ऐसे ऐसे जो जोड़ा पकड़ के है बायवलेंट को, ये धीरे 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 स्लीपिंग ऑफ काइस्मेटा इज कॉल्ड एज योर टर्मिनलाइजेशन. ठीक है.
बुकेट स्टेज ऑकर्स इन विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेस? लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में ही होते हैं। क्या होता है ये लेप्टोटीन में? ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में सारे बायोवेलेंट, सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम है आपका, डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम विथ ये फाइबर्स, है ना, इसके पास आ जाते हैं सारे बायोवेलेंट क्रोमोसोम। ठीक है, ये बायोवेलेंट ऐसे दिखने चाहिए, एक्चुअली डबल हो गया ना। वी हैव ऑलरेडी एक्चुअली डिस्कस दिस। ये जो है डुप्लीकेटेड, ये सारे के सारे इसके पास आ जाते हैं, किसके? सेंट्रियोल के पास। ठीक है, क्योंकि उनको आगे जाके जोड़ा बनाना रहता है, इसीलिए इसी को बोलते हैं बुकेट स्टेज। इसी को, ये देखो ऐसे बुके जैसे बन गया, लेप्टोटीन में दिखता है। इन एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस ईच क्रोमोसोम्स कंटेन, एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड रहेंगे? 1 क्रोमैटिड। एनाफेज 2 में क्या होता है? एनाफेज 2 में ये जो बायोवेलेंट था, बायोवेलेंट में से एक एक सेल में गया है, ठीक है, और ये दूसरे सेल में एक बायोवेलेंट का जोड़ा गया, मतलब एक बायोवेलेंट में से एक दूसरे सेल में गया है। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम थे। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में ये जब डायड बना, डायड मतलब मियोसिस 1 के एंड में ये 2 सेल मिले अपने को, 2 सेल में होमोलॉगस क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम इसमें गया और ये दूसरा क्रोमोसोम इसमें गया, बायोवेलेंट में से एक इसमें और एक इसमें, इसलिए तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया। उसके बाद ये बीच में से टूट जाएगा, ये बीच में से ऐसे टूट जाएगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा। फिर आगे क्या मिलेगा अपने को? ऐसी सिचुएशन मिलेगी। ठीक है, मतलब 1 क्रोमोसोम विल हैव 1 क्रोमैटिड। इन एनाफेज 1 क्या होता है? इन एनाफेज 1 ईच क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ, एक क्रोमोसोम में एनाफेज 1, एनाफेज 1 में क्या होता है? एनाफेज 1 विल हैव, फॉर एग्जांपल एनाफेज 1 में अपने को ऐसे पिक्चर दिखते हैं, है ना, ये पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, यू विल सी दिस वन, 1 2 3 4 4, ऐसे सपोज ये एनाफेज 1 है तो 1 क्रोमोसोम विल हैव 2 क्रोमैटिड्स, 2 chromatids. In anaphase 1, the 1 chromosome will have 2 chromatids. ठीक है ना, ये जो क्रोमोसोम था ऐसा लगा हुआ यहाँ पे एनाफेज 1 में, मेटाफेज में ऐसे लगता है। मेटाफेज में ऐसे लगने के बाद क्या होता है? ये जो सेंट्रोमियर को पकड़ता है और ये ऐसे खींचता है। ठीक है, तो कितने हैं? 1 और 2 क्रोमैटिड्स, 1 क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स। एनाफेज 1 की बात चल रही है ना। In meiosis, the division of centromere occurs during, मियोसिस में सेंट्रोमियर डिवाइड कब होता है? सिर्फ एनाफेज 2 में होता है। इन मियोसिस द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर ड्यूरिंग डायकाइनेसिस, है ना। डायकाइनेसिस लास्ट स्टेज है प्रोफेज 1 का, और प्रोफेज 1 में ही जाके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है ना। सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कब सेपरेट हो जाएंगे? सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है ये सेपरेट हो गए, कब सेपरेट हो जाते हैं? उसी को बोलते हैं डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन हो गया तो क्या हो जाएगा? एनोमली आ जाएंगी, है ना। जैसे ट्राइसोमी 21, एक 21 नंबर क्या, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का सेपरेट ही नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल ये 21 नंबर का क्रोमोसोम है, ये चिपक के ही है, और ये दोनों क्रोमोसोम एक गमिट में चला गए। ठीक है, और फिर वो जो गमिट है वो दूसरे गमिट के साथ, अगर ये ओवम है उसमें एक्स्ट्रा 21 नंबर का क्रोमोसोम का जोड़ा है, मतलब 21 नंबर क्रोमोसोम के 2 कॉपीज है उसके पास, ओवम के पास। ये जो ओवम है ये अगर नॉर्मल स्पर्म से फर्टिलाइज कर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो जो उसका जाइगोट बनेगा उसके पास 21 नंबर के क्रोमोसोम के 3 जोड़े हो जाएंगे। 3, स्पर्म के पास एक नॉर्मल वाला था और ओवम के पास 2 21 के, इसलिए उसको बोलते हैं ट्राइसोमी 21। 3 ट्राइसोमी 21 मतलब 21 नंबर के क्रोमोसोम के 3 जोड़े, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, अरे कौन सा चल रहा है यार। डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन टू मेटाफेज, है ना। इसके बाद क्या होता है? मेटाफेज ही आता है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। साइनोप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, साइनोप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये जो जोड़ा है इसको पकड़ के रखता है एक स्ट्रक्चर, उसी को बोलते हैं साइनोप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जो प्रोटीन है और
पेयर्ड मियोटिक क्रोमोसोम, पेयरिंग दिखाता है, लेप्टोटीन में नहीं, ज़ाइगोटीन में दिखेगा। ईच क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ क्रोमैटिड्स इन, ईच क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ वन क्रोमैटिड, एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड कब मिलेगा अपने को? एनाफेज 1 में नहीं, एनाफेज 1 में वन क्रोमोसोम विल हैव टू क्रोमैटिड्स, एनाफेज 2 में मिलेगा, मेटाफेज 2 में भी नहीं, मेटाफेज 1 में भी नहीं, ठीक है, क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, इसीलिए वन क्रोमोसोम विल हैव वन क्रोमैटिड। इफ द नंबर ऑफ बायवैलेंट आर 8, नंबर ऑफ बायवैलेंट कितने हैं? 8 है। तो क्रोमोसोम्स कितने रहेंगे? जोड़े अगर 8 है तो क्रोमोसोम्स जो कितने रहेंगे? 16 जोड़े है ना, 8 जोड़े हैं, पेयर है, इसलिए टोटल कितने रहेंगे? 16। मेटाफेज 1 में बायवैलेंट कितने हैं? 8 है। व्हाट शैल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल आफ्टर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 रिस्पेक्टिवली? अच्छा, ये मेटाफेज 1 में क्या हो गया? मेटाफेज 1 में ये बोल रहे कि ऐसे एक, ये एक है, उसके बाद ये दूसरा, ऐसे पूरा नहीं निकालूंगी अपन में, दूसरा, तीसरा आएगा ऐसे, चौथा, पांचवा, 6th 7th और 8 ना, ऐसे 8 है, ऐसे सेम। तो फिर एनाफेज में यहाँ से अपन सेपरेट करते हैं तो 8 ऊपर जाते हैं और 8 नीचे आते हैं, ठीक है। तो अब फिर अपने को मियोसिस 1 के एंड में क्या मिलता है? अपने को 8 क्रोमोसोम्स, क्योंकि टोटल क्रोमोसोम है पेरेंट में 16, कितने हैं? तो अगर बायवैलेंट 8 है तो पेरेंट में क्रोमोसोम्स कितने रहेंगे? 16। G1 में कितने रहते हैं? 16 ही रहते हैं। S में भी 16 रहते हैं, G2 में भी 16 रहते हैं। मियोसिस 1 के एंड में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, क्योंकि 16 है टोटल, 16 टोटल है, मतलब 1 2 3 4 6 7 ऐसे 8 ऊपर लगेंगे, 8 नीचे लगेंगे, ठीक है। तो 8 ऊपर एक सेल में चले जाएंगे और 8 दूसरे सेल में चले जाएंगे, 8 in 1 एंड 8 in 1, ये डायड बनते हैं अपन इसको। तो इन मियोसिस 1 के एंड में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी हाफ दैट ऑफ द पेरेंट सेल, दैट इज योर 8। और फिर मियोसिस 2 में डीएनए हाफ हो जाता है, क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, बल्कि क्रोमोसोम का नंबर सेम टू सेम ही रहेगा, 8 and 8। Which of the following not occurs in anaphase 1? सेग्रीगेशन होमोलॉगस क्रोमोसोम का होता है, ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है ये सेपरेट हो जाते हैं, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल भी होता है, पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम होता है, पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर नहीं होता। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर हमेशा एनाफेज 2 में होगा। ये कहाँ पे होगा बच्चे? एनाफेज 2 में होगा। In meiosis, division of nucleus twice but replication of DNA only once. 2 बार न्यूक्लियस, 2 बार साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा मियोसिस में, सिर्फ एक बार न्यूक्लियस, एक बार डीएनए डुप्लीकेट होगा। 1 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आफ्टर मियोसिस 1 क्या होता है? आफ्टर मियोसिस 1 द 2 क्रोमैटिड्स of a chromosome are genetically similar. The 2 chromatids of chromosome are genetically not similar because क्योंकि पैचिटिन में the 2 chromatids of chromosome are genetically different. Why? क्यों ऐसे होता है आफ्टर मियोसिस 1? क्योंकि मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में जो पैचिटिन स्टेज है, वहां पे क्या होता है, ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, क्रॉसिंग ओवर हो गया। होमोलॉगस क्रोमोसोम के, ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है उसके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये एक दूसरे के सिस्टर है, ये एक दूसरे के सिस्टर है, और ये क्या हो गया? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया, इसीलिए दीज नाउ सेपरेट होने के बाद ये दोनों एक दूसरे के डिफरेंट रहेंगे। इसके पास कैपिटल टी है तो इसके पास स्मॉल टी हो सकता है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस इज, वो सिंपल है, लता जरा पानी दे दो।
लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, ये हम बचपन से जानते हैं, कोई नया नहीं है इसमें। लता जरा पानी दे दो, हम छोटे छोटे बच्चे थे तब से यही पढ़ते हैं, लता जरा पानी दे दो, मेरे को भी था ये, हमने जब नीट दिया था तब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज हेटेरोटाइपिक? होमोटाइपिक क्या होता है, हेटेरोटाइपिक क्या होता है? सी, जैसे मियोसिस जैसे मियोसिस 1 है और मियोसिस 2 है, तो मियोसिस 1 में क्या होता है, मियोसिस 1 में रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं इसको, रिडक्शनल, है ना, रिडक्शन, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, और इसी को ही बोलेंगे हेटेरोटाइपिक डिवीजन, हेटेरोटाइपिक डिवीजन। बल्कि मियोसिस 2 कैसे होता है, माइटोसिस, इक्विवेलेंट टू माइटोसिस ही है ये, इसको इक्वेशनल भी बोलते हैं, इक्वेशनल, क्योंकि वही जो 8 है वही आगे जाके 8 ही रहता है, या फिर इसको होमोटाइपिक डिवीजन भी बोलते हैं, होमोटाइपिक, क्योंकि वही कॉपी पेस्ट होता है आगे जाके, मियोसिस 1 ही आगे जाके क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, इसलिए मियोसिस 1 को बोलते हैं हेटेरोटाइपिक। डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स बिफोर, डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, एट द एस फेज, ठीक है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स बिफोर माइटोसिस एंड बिफोर मियोसिस 1, बिफोर मियोसिस 1, नॉट मियोसिस 2 के पहले आता है इंटरकाइनेसिस, और वहां पे डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता, माइटोसिस एंड मियोसिस 1, ये रॉन्ग है, ठीक, अरे ठीक, थ्रेड स्टेज, मोटे तगड़े, ठीक, थ्रेड स्टेज इस पैचिटिन, नाम में ही है पैचिटिन, पैच बन गया है ना, कहाँ पे, पैचिटिन स्टेज में। क्रॉसिंग ओवर दैट रिजल्ट्स इन द जेनेटिक कॉम्बिनेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म ऑकर्स बिटवीन, क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज ऑकर्स बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर, ये सिस्टर है एक दूसरे की, ये बहनें हैं, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी है तो इसके पास भी कैपिटल टी है, इसके पास स्मॉल टी है तो इसके पास भी स्मॉल टी है, दीज टू आर सिस्टर क्रोमैटिड्स, दीज टू आर सिस्टर क्रोमैटिड्स, बट ये और ये दीज आर नॉन सिस्टर, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, वन क्रोमोसोम सेकंड क्रोमोसोम, एंड दिस आर द नॉन सिस्टर टू each other, then the crossing over always occurs between non-sister chromatids of homologous chromosomes, और बायवैलेंट, बायवैलेंट मतलब ही होमोलॉगस क्रोमोसोम। व्हेन साइनेप्सिस इज कंप्लीट ऑल अलोंग द क्रोमोसोम, अगर साइनेप्सिस कंप्लीट होने के बाद द सेल इज सेड टू एंटर इनटू व्हिच स्टेज, साइनेप्सिस, पैचिटिन, साइनेप्सिस के बाद कौन सा स्टेज आता है, वही आता है ना। ये क्या है, इन डिप्लॉयड प्लांट सेल द एन वैल्यू इज 16, n वैल्यू इज 16, n इज इक्वल टू है 16, 2n इज इक्वल टू रहेगा 32, डिप्लॉयड है ना। What is the possibility in the metaphase 1 of meiosis? n is equal to 16, मेटाफेज 1 में क्या होता है, यहाँ पे 16 लग गए ऊपर और यहाँ पे 16 लग गए इसे ऊपर, 16 का जोड़ा बनेगा ना टोटल, ना 16 ऊपर लग जाएंगे, 2 ऐसे 1 2, 16 ऊपर लग जाएंगे और 16 नीचे लग जाएंगे, तो टोटल बायवैलेंट हो जाएंगे, 16 बायवैलेंट्स आर देयर, 16 बायवैलेंट्स, 16 बायवैलेंट्स है ना, क्योंकि हैप्लॉइड है 16, मतलब टोटल क्रोमोसोम है उसके 32, ठीक है, 2n इज n इज इक्वल टू 16, दैट्स व्हाई 2n इज इक्वल टू 32, 2n इज इक्वल टू 32 मतलब जोड़े कितने हैं, 16, है ना, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम, इसको बायवैलेंट बोलते हैं, बायवैलेंट। ऐसे बायवैलेंट कितने हैं उसके पास, 16, 16 यहाँ पे ऐसे अरेंज हो जाते हैं मेटाफेज में, मेटाफेज में बेसिकली क्या होता है, बायवैलेंट, जितने भी बायवैलेंट है, मतलब जितने भी होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयर है वो इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं, वैसे कितने हैं उसके पास, 16 बायवैलेंट्स आर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
54 नंबर का क्वेश्चन है, कर लेते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर इंटरकाइनेसिस, के बारे में गलत क्या है? व्हाट इज इनकरेक्ट फॉर इंटरकाइनेसिस? किधर गया? इंटरकाइनेसिस क्या होता है? M1 और M2 के बीच की जो फेज है, M1 और M2 के बीच में आता है इंटरकाइनेसिस, है ना। शॉर्ट लिव्ड है। इट इज द स्टेज बिटवीन M1 एंड M2 ऑफ meiotic डिवीजन। देयर इज नो DNA रेप्लिकेशन, बराबर है, DNA रेप्लिकेट नहीं होता। DNA रेप्लिकेट बट क्रोमोसोम नंबर सेम। इनकरेक्ट पूछा है 3, इनकरेक्ट, DNA रेप्लिकेट ही नहीं होता। जनरली शॉर्ट लिव्ड, ये भी राइट है, 3 रॉन्ग है। At NFS2, sister chromatids move towards opposite pole of the cell by contraction of spindle fiber attached to kinetochore, shortening of microtubule attached to kinetochore, relaxation of spindle fiber. Contraction of spindle fiber attached to kinetochore. क्या बोला है? The major event of mitotic prophase include cell of the following except। प्रोफेज में क्या नहीं होता? प्रोफेज में मेजर इवेंट ऑफ माइटोटिक प्रोफेज इंक्लूड सेल, क्या होता है प्रोफेज में? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम, करेक्ट है ये। इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, यस। हेल्प्स इन द साइटोप्लाज्मिक प्रोटीनेशियस माइक्रोट्यूबुल DNA replication, nuclear membrane breakdown and nuclear disaggregation। DNA replication नहीं होता है, DNA replication नहीं होता है। द मेजर इवेंट ऑफ प्रोफेज में DNA replication, डी नहीं होता। डी कैसे होगा प्रोफेज में? DNA replication occurs in the S phase, ठीक है, बाकी सब होंगे। एट मेटाफेज ऑफ माइटोसिस ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ। माइटोसिस के मेटाफेज में क्या होता है? फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम है, तो 1 से लेके पूरे के पूरे 46 एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम नंबर 1 हो गया, ये क्रोमोसोम नंबर 2 हो गया, ये क्रोमोसोम नंबर 3, ऐसे पूरे के पूरे 46 अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी क्रोमैटिड्स? कितने दिख रहे हैं आपने को? 1 क्रोमोसोम विल हैव 2 क्रोमैटिड्स, 2 क्रोमैटिड्स। मेटाफेज में 1 क्रोमोसोम विल हैव 2 क्रोमैटिड्स, ठीक है। 1 क्रोमोसोम विल हैव 2 काइनेटोकोर, यहाँ से अटैच होगा या वहां से अटैच हो गया, 2 काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर्स कितने रहेंगे? 1 क्रोमोसोम विल हैव 1 सेंट्रोमियर, 1 सेंट्रोमियर। एंड हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ DNA? हियर एक DNA रहेगा अंदर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ DNA। 1 क्रोमोसोम विल हैव 2 क्रोमैटिड्स, 1 क्रोमोसोम विल हैव 2 क्रोमैटिड्स, 1 सेंट्रोमियर, 1 सेंट्रोमियर, 2 काइनेटोकोर्स, 2 स्पिंडल्स and 2 DNA. A. In human chromosomes are, in human cell chromosomes are visible only during mitosis and meiosis. You cannot see chromosomes. You will see chromatin instead of chromosome when the cell is at the interphase or cell is at the resting stage. You can visualize, or we can easily visualize chromosomes only during M phase or a division phase or meiosis or mitosis. ये आएगा visible, ठीक है।
नेक्स्ट दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेम साइज शेप के नहीं रहते, ऑलवेज कंडेंस नहीं रहते. विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट क्रोमैटिड्स आर फॉल्स, दे आर रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम स्टिल जॉइन टुगेदर बाय सेंट्रोमियर. यस, है ना, ये क्रोमोसोम में रेप्लिकेट होने के बाद ऐसा दिखेगा, जॉइन बाय सेंट्रोमियर, इसी को क्रोमैटिड्स बोलेंगे. द बोथ क्रोमैटिड्स आर आइडेंटिकल बोथ इन माइटोटिक क्रोमोसोम. यस, ट्रू. फॉल्स पूछा है यहाँ पे. बोथ सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट्स इन द लेट प्रोफेज, ये रॉन्ग है. सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं एनाफेज में, इसलिए सी इज रॉन्ग. ठीक है. इन लोअर प्लांट्स एंड इन सम सोशल इंसेक्ट हैप्लॉइड सेल आल्सो डिवाइड. यस, दिस इज ट्रू. वी डिस्कस दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट काइनेटोकोर. काइनेटोकोर क्या है बच्चे, ये क्रोमोसोम है. फॉर एग्जाम्पल डबल होने के बाद ये स्ट्रक्चर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ठीक है. दे आर लोकलाइज्ड एट द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम. बराबर है ना, ये सेंट्रोमियर है तो यहीं पे मिलेगा काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर के साइड में. करेक्ट सेंटेंस. दे आर साइट वेयर माइक्रोट्यूबुल्स अटैच टू सेपरेट द क्रोमोसोम्स. माइक्रोट्यूबुल, दे आर द साइट ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स और स्पिंडल फाइबर वहीं पे अटैच होंगे. They organize so that there is one per sister chromatids in meiosis. They are organized. They are organized so that there is one per sister chromatids in meiosis. All are true, है ना. मियोसिस में एक क्रोमोसोम है, ये बाइवलेंट का जोड़ा हो जाता है, ऐसे अरेंज हो जाते हैं तो एक ही रहता है, एक ही रहता है, एक क्रोमोसोम के लिए एक ही रहेगा. ऑल आर ट्रू. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है द माइलस्टोन दैट डिफाइंस द मेटाफेज इज. व्हाट इज द माइलस्टोन व्हिच डिफाइंस मेटाफेज? ऑल क्रोमोसोम्स अरेंज एट द इक्वेटोरियल प्लेट, लाइन अप, दे लाइन अप. ठीक है. द माइलस्टोन दैट डिफाइंस द एनाफेज इज व्हेन द क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिड्स गेट सेपरेट. एनाफेज का फीचर ही वही है, द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड द क्रोमैटिड्स आर सेपरेट. In human male have how many? We have 46 chromosomes. Out of these 22 pair are autosomes. 22 pair मतलब 44. ठीक है. And if the human male is there, human male, then they have one X and one Y. ठीक है. Means how many different? These 22 are similar. 22 तो सिमिलर ही है. क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके 22 तक सारे सिमिलर है. मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 पे जितने जीन है उतने ही जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पे होंगे, इसका जोड़े पे होंगे. क्रोमोसोम नंबर 22 में भी सेम सिचुएशन चलेगी, जितने जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पे है उतने ही जीन क्रोमोसोम 22 तक सेम रहेंगे. क्रोमोसोम उसके होमोलॉगस काउंटर पार्ट पे रहेंगे. ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसका जोड़ा है ये दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 1. जितने जीन इस पे है उतने ही क्रोमोसोम नंबर 1 दूसरा उसका जो जोड़ा है उस पर रहेंगे. ठीक है. मतलब इफ यू सी द क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके 22 तक ये सारे सेम है, सेम. ठीक है. सेम है मतलब इसका 1, इसका काउंटर पार्ट ये सेम है. 22 नंबर का ये सेम है. ठीक है. हाउ मेनी डिफरेंट? 22 प्लस ये x प्लस एक y, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स? 22 तो सेम ही है ये पूरे. ठीक है. ये पूरे 22 और ये. ठीक है. 22, 23, 24 different types. If you consider female, when female have 22 autosomes which are similar and 1x, 2x she have. That means these are also similar. That means the female have 23 different types. Female have, but male पूछा है इसलिए 24. 22 plus x plus y. The number of chromatids in a cell in a prophase 1 of meiosis of a person with Turner syndrome. टर्नर सिंड्रोम कितने रहेंगे? क्रोमैटिड्स पूछा है. द नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स इन अ सेल इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस ऑफ पर्सन विद टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम मतलब 45XY, है ना. टर्नर सिंड्रोम में कितने रहते हैं? 22 ऑटोसोम्स, 22 पेयर ऑटोसोम्स के पेयर रहते हैं नॉर्मल, और एक एक्स क्रोमोसोम कम रहता है. मतलब 44x0, ये हो गया आपका टर्नर सिंड्रोम का केस. मतलब टोटल इसमें क्रोमोसोम कितने हैं? 45 क्रोमोसोम है. एक क्रोमोसोम कम है इसमें, 46 नहीं है. तो मेटाफेज में जाके क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या पूछा है? द नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स इन द सेल इन द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस. मियोसिस में ये 45 है तो यहाँ पे ऐसे पूरे अरेंज हो जाएंगे 44, 1 से लेके 22.
ठीक है, 22 नीचे 22 ऊपर, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा रहेगा जो अनपेयर्ड है, ठीक है, समझे, 22 ऊपर 22 नीचे, मतलब कितने हो गए 44, है ना, ऐसे 1 से लेके 22, 1 से लेके 22, और ये एक एक्स्ट्रा हो गया 23 नंबर का, समझिए, मतलब ये 44 प्लस ये एक एक्स, ठीक है, तो 44 के पास कितने क्रोमेटिड्स रहेंगे ऐसे, मेटाफेज में अरेंज है 1 2 3 4, ठीक है, 4, one chromosome will have two chromatids, one chromosome is having two chromatids, that's why 45 you will have, है ना, 44, ये पूरे 22 प्लस 22 प्लस 1 कितना हो गया 22 प्लस 22 प्लस 1 45, 45 into 2 you will have 90 chromosomes, 90 chromosomes नहीं 90 chromatids, 90 chromatids, 90 chromatids, ठीक है, you will have 90 chromatids, okay. Okay, I want to show you one more thing. See, Have you ever wondered why children do not look exactly like their parents, or why some siblings look so different from? see. So this is about meiosis. Why we are different? Right? These two individuals are different, and this is the site. The sex organs are the site of what? Meiotic division, or the reproductive cell are the site of meiotic division. See, these are the gametes, male gamete and female gamete having haploid number of cell. That fertilization हो गया, ये testes दिखाया है, seminiferous tubules. उसके अंदर फिर रिप्रोडक्टिव सेल होंगे, फिर देखो ये स्पर्म बन रहा है डिफरेंट, ठीक है, meiosis दिख रहा है पूरा पिक्चर meiosis का, you will find the 4 different haploid gametes, ठीक है, see here मेटाफेज, सॉरी यहाँ पे अरेंज हो गए पूरे होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, माइटोसिस डिफरेंस दिया है यहाँ पे, पूरे 46 यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे, और यहाँ पे 23 इधर और 23 उधर अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, तो दीज आर द रिजल्ट, डिप्लॉयड मिलेगा, इक्वेशनल डिवीजन इसलिए बोलते हैं इसको. What is common in between mitosis and meiosis? You will see these three stages. G1, S and G2 are common. The interphase is common both in meiosis as well as mitosis. See, what is the first phase? DNA get replicate in the S phase, है ना? Centriole also get duplicate and move start. See, this is your ester. These two different esters. Centromere, and these are kinetochore. This one and this one, kinetochore. These are homologous chromosomes. So what happens in the prophase 1? See, साइनेप्सिस पेयरिंग हो गई होमोलॉगस क्रोमोसोम की, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, अभी इधर का मटेरियल इधर, इधर का मैटर इधर, सी द क्रॉसिंग ओवर हो गया. नाउ दे आर नॉट, दिस वन एंड दिस वन, दिस बोथ आर नॉट genetically similar now. See, the nuclear envelope disappear in the prophase 1. At the end of prophase 1, the centrioles start moving toward the different pole. और फिर देखो यहाँ पे ये जो है पूरे बीच में अरेंज हो जाएंगे मेटाफेज में, प्रो मेटाफेज में, और मेटाफेज में प्रॉपर बीच में अरेंज हो जाएगी. प्रो मेटाफेज मतलब अर्ली मेटाफेज, ठीक है. बायवेलेंट अरेंज हो गए हैं, ना कि देखो ये बायवेलेंट जोड़ा अरेंज हो गया है, ये एक क्रोमोसोम होमोलॉगस और ये दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम, बायवेलेंट को अटैच हो गए कौन, स्पिंडल फाइबर, और बायवेलेंट फिर बीच में आ जाएंगे. बायवेलेंट मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम का जोड़ा, ये और ये, one chromosome will have two sister chromatids.
सी अभी बीच में आ गए पूरे एट द मेटाफाइसियल प्लेट, और फिर आधे क्रोमोसोम इधर आधे इधर हो जाएंगे। सी, यू विल सी, ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पे, इसलिए बोला है यहाँ पे क्रोमोसोम हो सकते हैं। हम्म, ये अरेंज ऐसे भी हो सकते हैं, देखो अरेंज ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर देखो यहाँ पे कैसे अरेंज हो सकते हैं। यहाँ पे एक पोजीशन ऐसे है कि पूरे पिंक एक साइड में है और ब्लू एक साइड में है, और फिर यहाँ पे देखो पूरे ब्लू एक साइड में है, पिंक एक साइड में है, यहाँ पे पिंक एक साइड में है, ब्लू एक साइड में है, मतलब दिस इज कॉल्ड एज हाउ दे अरेंज एट द मेटाफेज। ठीक है, और जितने ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल जितने ज्यादा नंबर के क्रोमोसोम रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास 2n इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास 2n इज इक्वल टू 46 है, या फिर 2n इज इक्वल टू 16 है, तो जितने ज्यादा नंबर के क्रोमोसोम, जैसे 2n इज इक्वल टू 46 है, मतलब उसके पास 46 क्रोमोसोम्स है, तो उतने ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के गमिट रहेंगे, क्योंकि हाउ दे अरेंज एट द मेटाफेज एंड हाउ दे सेग्रीगेट एट द एनाफेज, ठीक है ना। जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 के साथ, है ना, इसका होमोलॉगस ये वाला भी जा सकता है या फिर दूसरा भी जा सकता है। हाउ दे अरेंज, ये देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट दिए, डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट, है ना। क्रोमोसोम नंबर 1 का ये वाला होमोलॉगस दूसरे वाले होमोलॉगस के साथ भी जा सकता है, क्रोमोसोम नंबर 2 के। हाउ दे असॉर्ट इन, दे कैन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, वी हैव डिस्कस दिस थिंग, है ना। सी सेपरेट हो गए, अभी ये ब्लू ब्लू के साथ जाएगा, जरूरी नहीं है ब्लू इसके साथ भी जा सकता है, ये ब्लू के साथ भी जा सकता है। The factors of Mendel get segregated and this is your dyad forms, dyad form here, है ना। The cleavage by foramen एनिमल सेल दिखाया है फिर से। ये टीलोफेज 1 है, लूज देयर आइडेंटिटी पर डू नॉट डिस्पर्स कंप्लीटली। सेंट्रियोल इंटरकाइनेसिस में सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो गया, अगेन एस्ट्रल बन गए, मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, प्रोफेज 2 चल रहा है ये। अभी यहाँ पे क्रोमोसोम्स अटैच हो जाएंगे, बट टू वन क्रोमोसोम विद 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, सी हियर दिस इज प्रो मेटाफेज 2। अभी ये मेटाफेज एक एक क्रोमोसोम बीच में लाइन में है, इसके प्रीवियस क्या था, बायवैलेंट अरेंज थे, ठीक है। अभी यहाँ से सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया और फिर 2 डिफरेंट, यहाँ पे देखो डीएनए कंटेंट ऑल्सो गेट हाफ, सी हियर 1 क्रोमोसोम विथ हैव 1 क्रोमैटिड ओनली। अगेन क्लीवेज मेथड से नाउ यू विल गेट क्लीवेज मेथड, साइटोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियस क्रोमोसोम नाउ अगेन डिस्पर्स और डीकंडेंस इनटू क्रोमैटिन एंड यू विल गेट 4 हैप्लॉइड गमिट्स, ठीक है। ओके, the meiosis ensure the haploid stage while fertilization restore the diploid stage, okay, so this is it.